Today I am going to start your exercise 1.5 in which we have to classify which one is a rational or irrational. The question number 1 of your exercise 1.5 is that classify whether it is rational or irrational. So just look at the question number 1. Part 1. 2 minus root 5. We have to classify this number is rational or irrational. We know that if we are going to subtract any irrational number to the rational number, the resultant number is irrational because 2 is rational and 5 is irrational. If I am going to subtract irrational number from the rational number, the resultant number is also irrational. Alright? Second part. The second part is 3 plus root 23 minus root 23. We have to classify this one is a rational or irrational. Just look here. This one is a rational and this one is irrational. If we are going to add irrational to the rational, the resultant number is irrational only. But here we also subtract the irrational number. So first of all we have to calculate the value. After that we have to find if this one is a rational or irrational. So first of all I am going to open the bracket root 23 minus root 23. We know that if same numbers are there and one is a positive form and one is a negative form, then we have to cancel out. या कह सकते हैं दोनों माइनस हो गए 0 बचा. तो here 3 plus 0 3 and we know that 3 is a rational number. We can write all 3 as a 3 upon 1. So 3 is a rational number. Third part. Part third is 2 root 7 upon 7 root 7. We have to classify this one is a rational or irrational. So first of all we have to calculate it, we have to solve it, we have to convert it into shortest form, least form. Here root 7 is divisible by root 7. The resultant number is 2 upon 7 and we know that 2 upon 7 it is written in the form of P upon Q. Here P and Q are the P and Q are the integers and Q is not equals to 0. Therefore it is also a rational number. ठीक है बेटा? Next 1 upon root 2. ठीक है? आप देख रहे हो बेटा कि this number is written in the form of P upon Q. So according to you it is a rational number. But the definition of the rational number is the number which is written in the form of Q. No doubt here P upon Q की form में लिखा हुआ है. But the correct definition is the number which is written in the form of P upon Q, where P and Q are the integers and 1 is an integer but root 2 is not an integer. So therefore ये इंटीजर नहीं है, डेफिनेशन इनकरेक्ट हो गई. तो क्या बचा हमारे पास बेटा ये irrational number. You can also say कि 1 divided by root 2. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है? If we are going to divide any number, any rational number to the irrational number, the resultant number is irrational. अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. Next 2 pi. We know that pi is a irrational number. हमें पता है pi irrational number है. That's why the product of rational to irrational is also irrational. This is the question number 1. Just note down in your notebook first. Now come to the question number 2. I am going to rub these sums from the board. And question number 2 is simplify. I am going to simplify the values. Just look here. Question number 2, simplify. Part 1.
3 plus root 3, 2 plus root 2. We have to simplify this value. हमें इसको simplify करना है. We have to simplify this value. We know that if these type of numbers are there, जैसे 3 plus root 3 मतलब a plus b into c plus d. So this type of sums we have to solve by distributive property that we have learned in your previous class, in class 6, in class 7, in class 8. So we have to use here distributive property of multiplication over addition. So in this we have to firstly multiply 3 की multiply हम दोनों से करेंगे पहले, and then root 3 we have to multiply with the both the numbers. All right. So 3 into 2. Now plus 3 into root 2. ठीक है. Now from root 3 into 2. Now plus root 3 into root 2. ठीक है बेटा. Now multiply them. 3 2 जा 6 plus अब 3 into root 2. Some students in इसको इस तरीके से लिख देते हैं बेटा रूट 6. तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को बेटा. रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई होती है. ठीक है. रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई होती है. इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं. तो 3 1 जा 3 और रूट 2 एज इट इज आपके अंदर ऐसा है. ऑलराइट. प्लस सिमिलर विद दिस 2 रूट 3. अब 3 रूट 2 नहीं लिखे इसको, तो रैशनल नंबर को पहले लिखें, इररेशनल को बाद में लिखें. प्लस in this case if both the numbers are in the root then we have to multiply or answer will remain in the root. अगर ये सॉल्व हो जाता लाइक मेरा यहाँ पर आंसर आ जाता रूट 9 तो मैं इसको 3 लिख देता, पर ये रूट 6 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर तो ये ऐसे ही रहेगा. इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ऐसे ही रहेगा. ऑलराइट. नाउ ऐड देम. ऐड और सब्ट्रैक्ट कंडीशन होती है बेटा, या तो सब नंबर रैशनल हो देन वी कैन इजीली ऐड, या फिर सभी नंबर सेम रूट वाले हैं. वी नो दैट इफ इस तरीके से समझते हैं x plus y these two are non like unlike values, तो we are unable to add. इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा. if we are having x plus x तो we can easily write 2x, तो ये इजीली ऐड हो जाएगा. तो सिमिलर विद दिस रूट्स में भी यही होता है बेटा. अगर सेम रूट होगा मेरे पास राइट, रूट 3 प्लस रूट 3, तो ये रूट 6 नहीं होगा. कैसे ऐड करते हैं बेटा? वी जस्ट ऐड ओनली कांस्टेंट वैल्यूज, वी जस्ट ऐड ओनली सॉरी रैशनल नंबर्स है. इसको x की तरह कंसीडर करेंगे हम लोग, तो आंसर इज 2 रूट 3. सेम नंबर होगा यहां पर रूट में, देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में सेम रूट हो या डिफरेंट रूट हो, वी कैन इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक है बेटा. तो अनलाइक वैल्यूज आर देयर, so we are able to add now. So this is the answer of the question number 1. Now come to the question number part 2. Part 2 is that 3 plus root 3 minus root 3. Here we have to use your one identity of algebraic expressions. यहाँ पे identity use होनी है हमारी. We know that if the number is written like this, a plus b, a minus b, so it becomes a square minus b square. This one is the a, this one is the b, this one is the a, this one is the b. If one is in a subtraction form and one is an addition form, then the formula is, the identity is a square minus b square. And this is similar to that identity, a plus b. So a मान लो, उसको b मान लो, a plus b, a minus b. So we can directly write a square minus b square. ठीक है बेटा. आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से भी कर सकते हैं लाइक दिस, और ऐसे भी कर सकते हैं. तो 3 3 जा 9 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9, एंड वी नो दैट 9 is a square of 3, so we can write as a 3. Now solve it. 9 minus 3 6, so 6 is the answer. ठीक है बेटा. Now come to the third part. The third part is root 5 plus root 2
होल स्क्वायर। ठीक है, हियर यू कैन डू बाय टू मेथड्स। अगर हमें पता है कि 2 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो वी कैन राइट 2 into 2, उसको दो बार लिख सकते हैं। तो यू कैन आल्सो राइट 5 √5 plus √2 into √5 plus √2 and you can use the distributive property. Or the second method is that we can use here the identity. Identity is a plus b, ये a हो गया, ये b हो गया, a plus b to the whole square equals to a square plus 2ab plus b square. ये आपने that this identity you have to learn in your previous class, in class 8 आप पढ़ चुके हैं। तो here I am going to use the property a square, मतलब ये a हो गया 5 square plus 2ab 2 into a into b, 2 into a into b plus b square, b means √2 square. Now √5 into 5 √25 plus 2, ये इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ओनली रूट्स आर मल्टीप्लाइड, तो 5 into 2 दिस वन इज √10 प्लस √2 into 2 √4। फर्दर सॉल्व हो जाएगा, √25 मींस 5 प्लस 2 √10 प्लस 2 and we can add these two values, 2 plus 5 7 plus 2 √10. This is the answer. ये हमारे पास अनलाइक वैल्यूज आ गई हैं, तो वी आर अनेबल टू सॉल्व। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता, तो 7 to the 14 14 √10 हो जाता। ऑलराइट, द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ बाय दिस आइडेंटिटी। तो लास्ट पार्ट में भी बेटा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो यू हैव टू डू द लास्ट पार्ट योरसेल्फ बाय दिस आइडेंटिटी। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, you just try yourself। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझा दे रहा हूं थोड़ा सा बेटा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, उसमें बोल रहा है बेटा वी नो दैट द पाई इज द रेशियो टू द, या फिर इट इज द रिलेशनशिप ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये इसका एक क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है टू द पाई। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई बाय दिस मेथड ओनली, दिस फॉर्मूला, इससे निकालते हैं। बट these two numbers are written on the form of p upon q। जब p upon q की फॉर्म में if we are going to solve तो वो रैशनल ही आएगा, but we know that कि pi irrational होता है। तो क्या मतलब हुआ बेटा इसका, या तो c इसमें से irrational हो सकता है, या फिर d irrational हो सकता है, या फिर दोनों irrational हो सकते हैं। That's why the pi will come in a irrational form, but we are unable to solve, unable to find, हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि which one is the irrational number, या तो ये इररेशनल होगा, या तो ये होगा, या दोनों होंगे, बट वी आर अनेबल टू फाइंड, हमें पता नहीं है। ठीक है, वन इसमें क्या है, इसमें से एक नंबर इररेशनल या दोनों हो सकते हैं। तो दिस कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये बताया गया बस। ठीक है बेटा, यू कैन राइट द स्टेटमेंट सिंपली, यू जस्ट राइट द स्टेटमेंट कि ईदर सी इररेशनल और डी और बोथ। ठीक है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ पाई इज इररेशनल। ठीक है, ज्यादा वो नहीं है इसमें। Now come to the question number 4. Question number 4 we have to do later because this is based on the construction. तो आपको बताया था बेटा we have to do the construction। एक मैं construction वाला जो वीडियो है वो आपको अलग बना के दूंगा मैं, कि in that video you have to do all the construction parts। We having 3 construction parts, construction methods, construction questions in the chapter number 1, और वो जो construction की वीडियो होगी वो एक साथ बना के दूंगा मैं आपको पूरी। ठीक है बेटा, तो दिस वी हैव टू डू लेटर, ये हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, और हमारा एक क्वेश्चन पीछे भी रह गया है कंस्ट्रक्शन वाला, तो एक ही वीडियो में मैं सारे कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करवा दूंगा आपको। ऑलराइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, rationalize the denominator। what does it mean? Question number 5 is rationalize the denominator। You just simply say कि rationalize means we have to convert, we have to change the irrational denominator into rational part। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझाता हूं। You just simply say कि जब भी हमारे पास एक नंबर लिखा है which is in the p upon q, और the q is irrational number, अगर q की वैल्यू irrational है नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट,
तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेशनल फॉर्म, हमें इररेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना है। अब ये याद कर लें कि अगर नीचे रूट है, रूट ही होता है मोस्टली, ठीक है, रूट को हमें हटाना है डिनोमिनेटर से। जब डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा तो डिनोमिनेटर रेशनल फॉर्म में आ जाएगा। पूरा नंबर रेशनल नहीं आएगा, रेशनल नंबर तो इररेशनल ही रहेगा बेटा, बट डिनोमिनेटर से रूट हट के डिनोमिनेटर रेशनल फॉर्म में हो जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रैशनलाइजेशन। So our first part is 1 upon root 7. आप देख रहे हैं बेटा root 7 means irrational number, तो we have to remove this part, this thing from this root from the denominator. तो by this हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, we have to multiply and divide with the denominator. अगर मैं denominator से ही multiply और divide कर दूं तो शायद ये हट जाए। Just check it. Root 7 into 1 root 7, root 7 into root 7 root 49. We can also write, we know that कि root 49 means 7. तो वैल्यू भी वही है, this value is equal to this one. मैंने क्या करा, इसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे कह सकते हैं मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है जिससे इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, लुक हियर 3/4, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद एनी नंबर 5/5, भले ये वैल्यू आपको देखने में बड़ी लग रही है, चेंज हो गई है, बट ये इसके ही इक्विवेलेंट कहलाती है क्योंकि मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है और सेम नंबर से डिवाइड किया है। इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व 5 3 5 4, तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू अलग नहीं आई है, ये वैल्यू जो आई है दिस इज इक्वल टू दिस वन, बट थोड़ा सा हमने लिखने का जो वे था उसको हमने चेंज कर दिया। ये कैसे, क्यों किया? द रीजन इज दैट हमें इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है बेटा। तो this is the question number 5 part 1. now come to the second part. तो अगर सिंगल रूट होता है बेटा तो you have to do like this only. if a double roots are there then we have to like this, root 7 minus root 6. अब here यहाँ पे जो सिंगल रूट था we can easily multiply the single roots, but here two roots are there, यहाँ पे दो रूट्स है बेटा, then what we have to do, तो हमें इसमें भी यही करना होता है बेटा, we have to multiply and divide by the same number like this, same denominator. हम इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे जिससे इक्वेशन में कोई भी चेंजेस ना हो। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ हियर द नेगेटिव साइन इज टू बी देयर, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव साइन। इफ हियर द पॉजिटिव साइन इज टू बी देयर, अगर पॉजिटिव होता तो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता। अब ऐसा क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हमने ऐसा क्यों करा कि हमने साइन चेंज क्यों करे? बट अगर मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, लिसन वन थिंग, तो रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6, तो ये क्या बन जाएगा? रूट 7 माइनस 6 टू दी होल स्क्वायर, देन इट फॉर्म्स अ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगेन हमारे पास वैल्यू रूट में आएगी, वो सॉल्व भी नहीं होगी। तो हमें करना क्या होता है, वी हैव टू क्रिएट एन आइडेंटिटी हियर। हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनानी होती है a प्लस b और a माइनस b। वी हैव टू क्रिएट दिस आइडेंटिटी, हमें ये आइडेंटिटी बनानी होती है बेटा। बाय दिस आइडेंटिटी दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, देखिए बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो ये आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉल्व बाय अपोजिट साइड, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय द डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड। नाउ सॉल्व इट। ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है, ठीक है बेटा, एंड इस पे ब्रैकेट्स लगा दिए। तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1, किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से करो, हमें वही नंबर मिल जाता है। अपॉन हियर a minus b, a plus b, a minus b, a plus b means a square minus b square. तो a means 7 square minus root 6 square. बेटा रिमेंबर वन थिंग, बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ माइनस करना पड़ेगा फिर हमें, तो बच्चे यहाँ प्लस लगा देते हैं। आपको यहाँ प्लस लगाना है, दिस वैल्यू ऑलवेज कम इन नेगेटिव फॉर्म, चाहे कहीं यहाँ प्लस हो या फिर यहाँ प्लस हो, यहाँ पर माइनस ही आता है, फॉर्मूले में माइनस ही दिया होता है, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाइक दिस, तो यही मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्टली वी कैन लर्न दिस आइडेंटिटी। नाउ रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7 रूट 49, और यू कैन डायरेक्टली राइट 7 या रूट से ही कटिए, इस तरह से मान लेते हैं, माइनस रूट 6 इंटू रूट 6 रूट 36 मींस 6, ठीक है बेटा। नाउ सॉल्व इट फर्दर।
कितना आ जाएगा बेटा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1. So this is the answer. You can write the 1 in the denominator or you can remove. ठीक है, 1 लिखो या नीचे नहीं लिखो एक ही बात है, ये भी आंसर ये भी आंसर. तो these are the two methods, these are the two parts of the question number 5. The two parts are remaining that you have to do it yourself. एक में प्लस है बेटा, एक में माइनस है. जिसमें प्लस होगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें माइनस होगा उसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है बेटा, तो रिमेनिंग पार्ट of this question number 5 you have to do it yourself. Thank you.